Okay, welcome my dear students. So, welcome back to the topic ionic equilibrium. And in ionic equilibrium, today we will discuss a new aspect. We call this as solubility product. Solubility product. Now this solubility product is a new term for us, but before going into details of it, let us see one or two definitions or two information which are necessary to explain this phenomena of solubility. एक है, सबसे पहले हम तो ये solubility की definition अगर देखें तो what do you mean by solubility? सभी को पता है solubility, सर वो solute डाल दो solvent में solution बन जाता है, solubility बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना. What is solubility scientifically अगर बोलना है in terms of chemistry, if we want to say solubility तो बोल सकते हैं grams of substance in unit volume of 100 ml ले लो या फिर 1 लीटर ले लो आप. या सबसे सिंपल तरीके से solubility is what? grams per liter. Grams per liter is what we can say that this much amount of substance dissolved in this much volume of solvent. तो ये this much of substance means grams of substance, gram per liter is what? The solubility. So grams of a particular substance dissolved in unit volume, it could be 1 liter or 100 ml. For our convenience, we take 1 liter. So grams per liter is what we can explain solubility. जैसे हम concentration है ना, molarity हम कहते हैं. What is molarity? Moles per dmq. Number of moles per dmq. It is a concentration term. लेकिन molarity, number of moles of solute dissolved in 1000 ml or 1 liter of solvent. तो वो सबके बदले हम क्या बोलते हैं? Moles per dmq, moles per liter. तो यहाँ पर solubility को क्या बोलेंगे? Grams per liter. This much grams of substance dissolved in unit volume, that is 100 ml or 1 liter of solution, giving तो solubility हो गई है. अब इसी में हम एक और टर्म ऐड कर देते हैं, मोलर solubility. मोलर solubility. अब इसको एक्सप्लेन करना है तो ये भी उतना ही इजी है. मोलर solubility, when 1 mole of a particular substance dissolved in 1 liter of a substance at a given temperature is what we call as molar solubility. तो ये क्या होगा? moles per liter or per dmq, number of moles of substance dissolved in 1 liter. To get a saturated solution of it we call as molar solubility. तो ये मोलर solubility होगी सेकेंड टर्म. एक और टर्म है sparingly soluble salt. sparingly soluble salt. ये तो शायद आप लोगों को पता होगा. जैसे दो टर्म हमको पता है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड. वैसे ही हमें टर्म पता है जिसको हम कहते हैं कि completely soluble और insoluble. तो completely soluble तो समझता है हम सबको, insoluble ये भी समझता है. जैसे हम sand ले लें तो sand if we put in water remain insoluble. If we take NaCl in water completely soluble. तो soluble completely समझा, insoluble समझा. अब sparingly soluble salt means a salt which is soluble to negligible extent
or to a very smaller extent. Soluble salt which is soluble to negligible extent, or remains almost insoluble. We are not saying completely insoluble. Will remain almost insoluble is what we call as a sparingly soluble substance. So फिर से एक बार, क्योंकि ये टर्म हम यूज करने वाले हैं, sparingly soluble salt, a salt which is soluble to negligible extent or remains almost insoluble is known as sparingly soluble salt. तो आ गया solubility, molar solubility आ गया, sparingly soluble salt आ गया, ये 3 डेफिनेशन. अब इसमें हम लोग देखते हैं कि solubility प्रोडक्ट क्या होता है. अब solubility प्रोडक्ट समझने के लिए let us consider AgCl. This is a salt, a strong salt. To consider AgCl as a sparingly soluble salt, when it is dissolved in water, it ionizes as follow. अभी तो ये बोलते ionizes as follow. Now it ionizes as follow means what? It is a stronger salt. When it is a but what? It is a sparingly soluble salt. Sparingly soluble. होता क्या है कि जब ये AgCl सॉलिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व होगा वाटर में, ये AgCl एक्वस लिख देंगे यहाँ पर. दिस AgCl गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, and get ionizes to Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. आ गया. तो इसमें क्या देखते हैं हम? There is a kind of equilibrium we see that AgCl is in equilibrium with AgCl aqueous. AgCl solid is in equilibrium with AgCl aqueous, which is in equilibrium with Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. So अब कैसा है? A is equal to B is equal to C, therefore A is equal to C. है ना? इतना हमको पता है. तो इसमें एक न्यू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम सेट होता है, एंड दैट इक्विलिब्रियम वी सी दैट AgCl solid is in equilibrium with Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. करेक्ट है? तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ हमको दिखता है. फिर से आई विल गो बैक टू दिस अगेन, क्योंकि एक टर्म को मुझे अभी और फिर से रिवाइज कर लेना है. Now, since this AgCl is a sparingly soluble salt, it dissolves to a negligible extent. है ना? It is soluble to negligible extent. Whatever amount is soluble is very, very small. And out of that dissolved portion, it quickly get ionized into cation and anion. Out of dissolved हो रहा है बेटा बहुत कम, उसमें से जितना भी डिसॉल्व होगा
उसके आयंस अपने को वाटर में मिलने वाले हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल द solubility of a sparingly soluble salt, which gives a unique kind of equilibrium, AgCl solid giving Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. Correct है? Because this AgCl is in equilibrium with AgCl aqueous. अगर आप सिर्फ इसी को कंसिडर करो तो ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, और जितना भी डिसॉल्व हो रहा है वो बहुत कम है, जो क्वांटिटी लिया वो ज़्यादा है, तो इसके बीच में एक टाइप का इक्विलिब्रियम आ जाएगा. और नेक्स्ट क्या हो रहा है कि whatever amount get dissolved in water, AgCl aqueous, quickly get ionized into Ag positive aqueous and Cl negative aqueous. Correct है? And therefore what we see, this kind of equilibrium exists in a sparingly soluble salt. Now our previous information also helps us that whenever there is an equilibrium, we can apply law of mass action and find its equilibrium constant. तो equilibrium constant K is equal to, क्या लिखना चाहिए मैंने? Equilibrium constant K is equal to, क्या लिखेंगे बेटा? Concentration of product upon concentration of reactant. अब reactant क्या है यहाँ पर? AgCl solid, और न्यूमरेटर में प्रोडक्ट साइड में क्या है? Ag positive aqueous into Cl negative aqueous upon AgCl solid. This is what, where K is equilibrium constant, where K is in equilibrium constant, is equilibrium constant. Okay, now we also know that this, but concentration of AgCl solid is always considered as constant, always considered as constant. That is, ये AgCl concentration solid is equal to constant. फिर से बेटा क्यों constant हो रहा है ये? क्यों constant consider किया? क्योंकि out of total volume or total amount, a very smaller amount of it get ionized or get soluble. Correct है? तो concentration जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. जैसे वाटर की बात करते हैं ना हम लोग, concentration of water taken as constant because a very large volume of water is used, it doesn't make any difference in its concentration. अगर उसमें से थोड़ा सा निकाल भी लिया तो उसके concentration पे फर्क नहीं पड़ेगा. वैसा ही है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, एक्सेस में लिया है, और उसमें से बहुत कम क्वांटिटी डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ सोल्यूशन कैसा बनाया है? सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये टर्म तो आपको पता है. सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 स्पून शुगर ऐड किया, 2 किया, 3 किया, शुगर डिसॉल्व होते जाएगा. लेकिन 7-8 स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर अगर आप ऐड करेंगे, कितना भी स्टर करें, तो क्या होगा? आखिर में क्या देखेंगे कि ग्लास के बॉटम में हमको शुगर डिपॉजिटेड दिख रहा है. दैट मीन्स जो शुगर हमने ऐड किया, जितना डिसॉल्व होना था डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल होना था सॉल्युबल हो गया, बाकी का जो शुगर पोर्शन है वो नीचे सेटल हो गया. उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमने यहाँ पर एक्सेस में लिया.
बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है, जो भी क्वांटिटी डिसॉल्व हो रही है वो आयोनाइज भी हो जा रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम जो रहेगा वो हमें ये एक यूनिक इक्विलिब्रियम मिलेगा और उसमें ये AgCl का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट करेंगे। इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव into concentration of Cl negative upon constant। अब ये कांस्टेंट को डिनोट करते हैं K डैश से, तो क्या हो जाएगा K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। The product of two constant will be another constant, and that is what we denoted by Ksp. Ksp is equal to, यानी ये constant है, is equal to concentration of silver ion in aqueous medium into chloride ion in aqueous medium, where, and this Ksp, where Ksp is known as solubility product. It is known as solubility product, and this equilibrium is what we call as solubility product equilibrium. तो Ksp मिला क्या हमको? Ksp is equal to Ag positive ion aqueous into Cl negative aqueous, where Ksp is known as solubility product. अब ये solubility product सिल्वर क्लोराइड के लिए आ गया। एक जनरल सॉल्ट हम डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक जनरल सॉल्ट। जनरल सॉल्ट कैसा रहेगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल। और अब इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट लेते हैं, देखेंगे आप BXAY, BA सॉल्ट है, BXAY ये सॉल्ट लिया हमने। इफ वी कैरी आउट इट्स आयोनाइजेशन तो क्या मिलेगा? यहाँ पर B कैटायन बनेगा और A एनायन बनेगा, इतना तो हमें पता है। अब ये B कैटायन बनेगा, कितने टाइम्स है B? X टाइम्स है। X टाइम्स B कैटायन इन प्लस Y टाइम्स एनायन। सही है? X टाइम्स कैटायन, Y टाइम्स एनायन। अब लेकिन कैटायन Y कैटायन और X एनायन ये हमको यहाँ मिलेगा। समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल लेंगे ना बेटा तब एकदम क्लियर समझ में आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा सर क्या लिख रहा है, X भी लिख रहा है, Y भी लिख रहा है, लेकिन कैसा है? BA सॉल्ट जब हम लेते हैं तो ये B कैटायन बनता है और A एनायन बनता है। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। इस पे चार्ज कितना रहेगा? ये 1। इस पे चार्ज कितना रहेगा? 1। ऐसा है वो, है ना? आगे समझेगा, अभी और एग्जांपल देता हूँ। करेक्ट है? तो चलिए जी, जनरल सॉल्ट लिया BXAY, उसमें से X टाइम्स कैटायन एंड Y टाइम्स एनायन मिल गया आपको। If we apply solubility product formula to this, तो क्या लिखेंगे? Ksp for BXAY type of salt is equal to, क्या मिलेगा हमको? Concentration of cation, ध्यान से देखना, concentration of cation लिखा क्या मैंने? cation बराबर into concentration of anion, ये भी लिख दिया anion।
but how many times cation? X times cation. So this coefficient goes to its power. How many times anion? Y times. It goes to its power, and this is what the expression for solubility product for a sparingly soluble salt whose saturated solution is prepared. करेक्ट है? अब देखो मैं इसी को एग्जाम्पल में प्लेस करता हूँ. हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा आज? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमने पहले 3 डेफिनेशन देख लिया. पहले सॉल्युबिलिटी की, फिर मोलार सॉल्युबिलिटी की, देन वी हैड सीन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, फिर उसके बाद ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम अप्लाई किया हमने कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो बहुत देर तक के इसे आपको स्टर करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके ये AgCl का कुछ पार्ट डिसॉल्व होता है. और जो कुछ पार्ट, दैट स्मॉल पार्ट गेट आयोनाइज इनटू कैटायन एंड एनायन, and therefore we get this equilibrium and final KSP expression. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियरली समझा देता हूँ. देखो बहुत इजी टर्म है. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेते हैं PbCl2. दिस इज a sparingly soluble salt. When it is dissolved in water, it ionizes into Pb2 positive aqueous plus twice Cl minus 1 aqueous. सही लिखा क्या? यहाँ ध्यान देंगे अभी तो बिल्कुल समझ ही जाना है आपको. twice Cl minus 1. अब इसमें KSP वाला फंडा अप्लाई कर दो. KSP for PbCl2 is equal to क्या आ जाएगा? Concentration of cation raised to the power of its coefficient. कितना कोएफिशिएंट है? 1 है, तो 1 को तो लिखते नहीं है हम लोग, तो वैसा ही रख दिया आपने. नेक्स्ट क्या आएगा? इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन. अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन लिख दिया मैंने यहाँ पर. रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट. तो कितना कोएफिशिएंट है? 2. वो चला गया उसके पावर में, तो यहाँ पर ये बन गया Cl minus 1 raised to 2. देखिए ऐसा ही लिखा था हमने Bxay. तो हमने क्या किया था? x टाइम्स b लिया था, x टाइम्स b लिया और y टाइम्स a लिया. y टाइम्स यानी ये हमारा x हो गया, ये y हो गया. x1 y2 ऐसा बोल सकते हैं. इसका कोई कोएफिशिएंट आ जाएगा. तो ये कैटायन है, ये एनायन है. अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पिक्चर. एक और एग्जांपल पढ़ते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एक और लेता PbNO3 ट्वाइस. इसी को कंसिडर करें, फिर और दूसरा एक एग्जांपल बढ़ाते हैं. PbNO3 ट्वाइस. आयोनाइज कीजिए वाटर मीडियम, फिर से Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 माइनस 1 एक्वस. हो गया क्या लिख के मेरा पूरा? नहीं हुआ. ये 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स आ गया बेटा यहाँ पर. सही है, 2 टाइम्स आ गया. अब इसका KSP लिखिए आप. KSP फॉर PbNO3 ट्वाइस कितना होगा? इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस एक्वस into concentration of NO3 minus 1 aqueous raised to the power equal to its coefficient. तो ये बना KSP for PbNO3 twice. अब एक सिंपल वाला सॉल्ट लेते हैं, BaSO4 barium sulfate solid when dissolved in water will give barium 2 positive
plus SO4 2 negative aqueous, barium 2 positive aqueous। ठीक है, अब KSP लगाना है। KSP फॉर BaSO4, तो क्या लिखेंगे आप? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन into concentration of anion अब कोई कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है, इसीलिए पावर भी नहीं रहेगा। तो ये सिंपल टाइप ऑफ सॉल्ट है, XY टाइप सॉल्ट है, तो आपने इसका KSP यहाँ लिख दिया। देखिए कितना इजी है। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम को हमने एक जनरल सॉल्ट में अप्लाई किया और फिर उसके बाद ये 2-3 एग्जाम्पल ले लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ओके, अब इसमें करना क्या है, इससे आगे अपने को और कुछ डिस्कशन करना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अभी डेफिनेशन बताएंगे ना, आगे के डिस्कशन के लिए डेफिनेशन क्या बनेगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बेटा डेफिनेशन क्या हो जाएगी? KSP की डेफिनेशन क्या होगी? यहीं से देख के आप डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं। क्या दिख रहा है अपने को? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जब हम बॉक्स में लेते हैं तो मोल पर DMQ हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस of a sparingly soluble salt in its saturated solution raised to a power equal to its coefficient in a given temperature is known as solubility product। क्योंकि solubility का पूरा जो फंडा है, ये सॉल्युबिलिटी का फंडा, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड देयरफॉर डेफिनेशन में एट अ गिवन टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। तो डेफिनेशन है अपने पास में लिखी हुई, टेक्स्ट बुक में दिया है, फिर भी मैंने जो बोला था उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और लिखते भी हैं, देखते हैं क्या आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ अ sparingly soluble salt in its saturated solution raised to power equal to its coefficient at a given temperature is known as or called as solubility product। आया क्या फंडा ध्यान में? solubility product, the product of यानी मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, किसका? sparingly soluble salt in its saturated solution raised to power equal to its concentration, equal to its coefficient at a given temperature is known as solubility product। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन आ गई solubility product। अब ये दो चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पर, KSP is equal to
concentration of Ba2 positive ion into concentration of SO4 2 negative ion in its aqueous state. अब यहाँ पर solubility product तो आप बोल सकते हैं. अब ये solubility product हो गया. ये जो लिखा है राइट हैंड साइड में, इसे हम कहेंगे आयोनिक प्रोडक्ट. बोलेंगे ना इसको इतना. अगर आपने इसको दबा दिया तो अब क्या दिख रहा है कि आयंस का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है. कैटायन मल्टीप्लाइड बाय एनायन इज व्हाट वी कॉल एज आयोनिक प्रोडक्ट. तो ये है आयोनिक प्रोडक्ट और इधर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अब आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा कि आयोनिक प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन है, आयोनिक प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अंडर एनी गिवन कंडीशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है ना, इसका जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में क्या रहेगा कि एक्सप्रेशन इट कंटेन्स आयंस, it contains ions at any concentration. ऐसा ना बोले, ठीक है. तो फिर से लिखें, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी. आयोनिक प्रोडक्ट में होता क्या है, ये अभी थोड़ा सा मिला है यहाँ पर. आयोनिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि दिस प्रोवाइड्स एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स concentration of ions at any given condition, given temperature or given condition. Expression which contains concentration of ion at any given condition, कि कोई भी जो कंडीशन रहेगी उस कंडीशन में हम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करेंगे, इसे कहेंगे आयोनिक प्रोडक्ट. लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में it contains only equilibrium concentration of ions, है ना. तो जो concentration है वो equilibrium concentration में रहेगा, तभी आप solubility product लिख सकते हैं. तो its expression which contains concentration of ions under equilibrium concentration, under equilibrium concentration. तो ये एक लिमिटेशन हो गया है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो एट इक्विलिब्रियम, और ये क्या है? एट एनी गिवन कंडीशन. तो ये डिफरेंस को भी याद में रखना है कि व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इसको हम आगे यूज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों, आगे हमारे कुछ कंपैरिजन में काम आने वाला है. तो बेटा आज के लिए अभी हमने क्या पढ़ा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया. इसमें आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम हमने डिराइव किया था जनरल सॉल्ट के लिए और AgCl के लिए, है ना. सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो क्या हो गया? AgCl सॉलिड ionizes to Ag positive and Cl negative ion. करेक्ट है. और जब इसका KSP लिखा आपने तो
concentration of Ag ion and concentration of Cl negative ion. तो ये इसका इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम मिला AgCl का, और जनरल सॉल्ट का भी मिला था हमको। तो एक बार जनरल सॉल्ट का फिर से लिख के देखते हैं, क्या आपको ध्यान में है? जनरल सॉल्ट का हम बिना देखे लिख सकते हैं। जनरल सॉल्ट BXAY ionizes into X times cation plus Y times anion। देखिए जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा ही आप अगर बोलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। X टाइम्स कैटायन Y टाइम्स एनायन मिल गया। अब इसी की सॉल्युबिलिटी लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, ये कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट है Y टाइम्स, ऐसा याद रखेंगे हम। लेकिन कितने नंबर ऑफ मोल्स है? X नंबर ऑफ मोल्स है। वैसे ही इनटू एनायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन लिख दिया। यहाँ पर इसका रेज़ टू द पावर इक्वल टू कोएफिशिएंट, ये बन गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट आ गया आपको, ये फिर से देखिए हमने लिख लिया जनरल सॉल्ट, और जनरल सॉल्ट को फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में समझ लिया। तो ये हो गया आज का हमारा डिस्कशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का आगे एक्सटेंशन, बट लिटिल डिफिकल्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग, और फिर उसके बाद इसमें हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ओके, सी यू सून।